हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में अबाउट पेडिग्री एनालिसिस एज वेल एज हार्डी वेनबर्ग्स न्यूमेरिकल टाइप ऑफ एमसीक्यूज। ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी बार डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स हमें ट्रिक्स नहीं समझते क्या है। तो अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल सबसे पहले। तो जब हम हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, कुछ बेसिक्स हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल में जो डोमिनेंट अलील है, उस डोमिनेंट अलील को पी करके हम अज्यूम करते हैं या डिनोट किया है। रिसेसिव अलील को क्यू डिनोट किया है। तो जब कोई होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो उसे हम पी स्क्वायर लेंगे, और होमोजाइगस रिसेसिव होगा जीनोटाइप तो उसे हम क्यू स्क्वायर लेंगे। हार्डी वेनबर्ग ने बताया था कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने भी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस हो, उनका रेशियो इज ऑलवेज इन द रेशियो, ऑलवेज इन 1:2:1 फॉर्म। ठीक है, एंड दिस रेशियो टुगेदर, इसका इक्वेशन जो हमको दिया है, उन्होंने कंसिडर किया कि वो हमेशा 1 के फॉर्म में ही रहेगा या यूनिटी रहता है करके। नाउ so whatever values are given, you try to convert those values into unity, which is 1. And if I have to calculate allelic ratio या allelic frequency, so for that the formula is p plus q equals to 1. Right, let's try to find out with the help of an example. यहाँ पे हमको बताया that in a population that is in Hardy-Weinberg's equilibrium, the frequency of recessive allele यानी q is equal to 0.2. What percent of individual in the next generation would be expected to show dominant trait, यानी dominant trait के बारे में बताया है। ठीक है, यानी पी स्क्वायर प्लस 2pq, ये दोनों ही हमको फाइंड आउट करना होगा। अब उसके लिए एज आई सेड, अगर हमें अलील फाइंड आउट करना है तो पहले हम यूज करेंगे p प्लस क्यू वाला रेशियो, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। if q is 0.2, then in that case automatically p will be equal to 0.8। अब इसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा इन वैल्यूज में या इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। so p square is 0.8 the whole square, which is p square equals to 64, that is 0.64. And it is also asking about 2pq. So 2 into p is 0.8 and q is 0.2, which is 0.32. ये दोनों ही characters जो है, which is, if I have to consider, let's say A is dominant, if I have to consider that A is dominant, so A will give you dominant trait as well as heterozygous dominant, दोनों ही dominant trait express करेंगे। So you will have to add this along with this, which becomes 0.96. So your answer over here becomes 96. All right, that's how you basically solve this particular MCQ. नेक्स्ट MCQ एक और अगर फॉर्मूला हम देखना चाहेंगे तो here in a random mating population, frequency of disease causing allele, that is disease causing recessive allele का frequency is 80%, which means small a is 80%, you can call it as, ऐसे वाले 80% है, that means q square will be what, 0.8 is what you can call it as, right? अब वो बता रहा है frequency of allele is 80, यानी q is 0.8 and not q square। वो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी कह रहा है, जीनोटाइप नहीं। so small a का frequency is 80%, that means q is 0.8। all right, हम यहाँ पे q square नहीं लेंगे because वो frequency of allele कह रहा है। अलील कहा तो ये आ जाएगा, अगर फिनोटाइप या जीनोटाइप कहा होता तो हम क्यू स्क्वायर या फिर स्मॉल ए कंसिडर करते थे। So in this case we will take q equals to 0.8. What would be the frequency of carrier individual in the population?
फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इंडिविजुअल कहा गया है, यानी अब ये कह रहा है अबाउट व्हाट बेटा, genotype. So now when it is talking about genotype, you have to first calculate p, which is 0.2. So 2 into 0.8 into 0.2 हो गया, which is nothing but 0.32. Is nothing but 0.32, which is nothing but 32%. So 32 becomes your answer over here. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे. We'll take one more example. In a random mating population, dominant allele is 0.7. What will be the frequency of recessive phenotype? So dominant allele is 0.7. So recessive becomes 0.3 over here, right? अब वो frequency of recessive phenotype पूछ रहा है, which is q square. So that is 0.3 the whole square. So q will be equal to 0.09. So my answer is B, 0.09. ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं हम? Another question, if we take up at a particular loci, frequency of dominant allele, which is P, is 0.6. Dominant allele A है, but हम P फिलहाल consider करेंगे उसको, because that's how Hardy-Weinbergs have claimed to us. And Q is 0.4. ये हमें already दे चुके हैं. अब वो पूछ रहा है कि frequency of heterozygotes कितने होंगे random mating में. That is 2 into 0.6 into 0.4, which is 0.48. 0.48 will be the answer over here, which is C. ठीक है? Likewise, if we talk about next, which is in a population of 100 individual, 360 belongs to genotype capital A and capital A, which is dominant alleles. यानी P square is 360 for us right now. ठीक है? Or I would say 0.36. That means P will be 0.6. 6 are 36. So 0.6 will be over here. So by default, Q will be 0.4. What is the frequency of allele A? अरे वही तो ले लिया हमने. Question तो पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन आंसर मिल चुका था हमें. That's where we get it. All right. Next, if the frequency of dominant allele is 60%, यानी P is 60, यानी P is 0.6, so Q will by default becomes 0.4. So what will be the heterozygous genotype is what it is asking us about. So 2 into P into Q, that is nothing but 2 into 0.6 into 0.4, which is nothing but 0.48. And percentage wise, it will become 48 percentage, 48 percentage. So it becomes the answer. Did we understand बेटा? वैसे ही अगर हम 7th question देख रहे हैं, this is one more example. A population as in Hardy-Weinberg equilibrium is in Hardy-Weinberg equilibrium for a genotype with only two alleles. If the gene frequency of allele Z small a, that is recessive, is 0.7, what will be the frequency of heterozygous? So 0.7 into 0.3 into 2 हो जाएगा, because P plus Q equals to 1 करना है हमें. Q का दिया है 0.7, so P plus Q equals to 1, so P will by default be 0.3 for us, right? Now 0.3 into 2, this becomes 0.42, so this becomes our answer. It's very simple बेटा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. फिर आते हैं एक और एग्जाम्पल के लिए. फॉर MN blood group system, the frequencies of M and N alleles are 0.3 and 7. The expected frequency of MN blood group bearing individuals, which is again 42% हो जाएगा. तो पीछे हमने किया, यहाँ पे जो हमने किया वही सेम कॉन्सेप्ट, बस खाली यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है. So you have 0.7 into 0.3 into 2, which is 42, that is 0.42, but then with percentage it becomes 42. Next question. सीधा यहाँ से देखेंगे. If the frequency of dominant allele, which is
P is 0.4. So then P square will be 0.16. So you have 0.16 over here. तो ये तो पहले ही रूल आउट हो गया, ठीक है. And Q will be 0.6. So Q square will be 0.36. So this is again ruled out over here. Now 2 into 0.4 into 0.6 will become 0.48. So this becomes your answer. Are we clear? Yeah, so these were the examples that we wanted to do for Hardy-Weinberg's principle. These are the rules for pedigree analysis. Now, ये अगेन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नीट में काफी बार इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए. तो आज हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं. So talking about solving pedigree, if I want to solve pedigree, how do we go about doing that? सबसे पहले हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अगर कोई डिसीज डोमिनेंट ट्रेट की वजह से हुआ है तो ऑब्वियसली वो कैपिटल में लिखा जाएगा. अगर ऑटोसोमल है तो कैपिटल ए, और अगर एक्स लिंक्ड है तो हम उसको कैपिटल एक्स कंसिडर करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है. अगर कोई डिजीज रिसेसिव की वजह से हुआ है तो उसको हम स्मॉल ए या फिर एक्स लिंक्ड रहेगा तो स्मॉल एक्स करके उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑलराइट. नाउ अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिजीज डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो याद रखना कि डोमिनेंट जो होता है वो कभी जनरेशन स्किप नहीं करता. यानी अगर वो फर्स्ट जनरेशन में है तो सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सो ऑन एंड सो फोर्थ सारे जनरेशन में दिखाई देगा. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है. कुछ फर्स्ट में दिखाई देगा, सेकेंड में दिखाई देगा, थर्ड में दिखाई देगा, फोर्थ और फिफ्थ में शायद ना दिखाई दे, या फिर फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में ना दिखाई दिया हो, या फर्स्ट में हो, सेकेंड में भी नहीं दिखाई देगा वो, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, ना फिफ्थ में. इससे भी हम डोमिनेंट ही कंसिडर करते हैं. इससे हम जनरेशन स्किप होना नहीं कहेंगे बेटा. स्किप तब कहते हैं जब फर्स्ट में है लेकिन सेकेंड में ना होके थर्ड में आया हो, फोर्थ में वापस स्किप होके फिफ्थ में आया हो, या फिर फर्स्ट में आया ही नहीं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में दिखाई दे रहा है, ये भी स्किपिंग द जनरेशन कहते हैं. या फिर फर्स्ट में आया हो, सेकंड में आया हो, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, दिस इज आल्सो स्किपिंग द जनरेशन. फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में वापस आया, दिस इज आल्सो स्किपिंग द जनरेशन. फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, लेकिन थर्ड में आया हो, दिस इज आल्सो स्किपिंग द जनरेशन. ये सारे जनरेशन स्किप होने का इंडिकेशन है, ठीक है, कि यहाँ पे वो जनरेशन स्किप कर चुका है, तो ये हो गया रिसेसिव एलील हमारे लिए. ऑलराइट. अब ये एक तरीका हुआ आइडेंटिफाई करने का वेदर द जनरेशन इज डोमिनेंट और वेदर द डिजीज इज डोमिनेंट और द डिजीज इज रिसेसिव. ठीक है. दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड इफ द डिजीज इज डोमिनेंट और रिसेसिव. एक बार ही हमें ये पता चल गया कि डिजीज डोमिनेंट है या रिसेसिव. नेक्स्ट चीज हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिजीज एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल. ठीक है. वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द डिजीज इज एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल. अब ये काफी ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट हो जाता है. अगर डिजीज एक्स लिंक्ड है तो ऑटोजोमल हो नहीं सकता, और अगर डिजीज ऑटोसोमल है तो एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता. यानी either it will be black or it will be white. You have to stick to these two. राइट बेटा. इसके लिए हमें क्या करना है, हम कंसिडर हमेशा पहले यही करेंगे कि डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड है. मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. हम कंसिडर हमेशा ये करेंगे कि डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड है. ठीक है. अब अगर डिजीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, यानी कि कैपिटल एक्स के वजह से डिजीज हो रहा है, इन दैट केस जो डॉटर्स होते हैं उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा. अगर फादर के पास अफेक्टेड जीन रहेगा तो सारी डॉटर के पास ये एक्स क्रोमोसोम आएगा ही आएगा. आई विल रिपीट बैक अगेन. ठीक है, थोड़ा साइड में ले लेते. ऑलराइट, आई गेस नाउ इट इज लिटिल बिट बेटर एंड क्लियर. इफ फादर is having X chromosome, let's say father has dominant X and Y. ठीक है. अगर फादर के पास डोमिनेंट एक्स है और वाई है,
तो फादर का ये डोमिनेंट एक्स उसके डॉटर्स में जाएगा ही जाएगा, और अगर डॉटर में जा रहा है तो डॉटर्स हैव टू बी अफेक्टेड, मीनिंग ऑल अफेक्टेड फादर विल हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर्स। अगर अफेक्टेड फादर ने डॉटर को डिजीज नहीं दिया, यानी या तो वो एक्स लिंक्ड नहीं है या तो वो डोमिनेंट नहीं। ठीक है, तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि वो डोमिनेंट डिजीज है या रिसेसिव। वो अगर आइडेंटिफाई होगा तो 50% अपना जंग वहीं पे हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि अगर मदर नॉर्मल है, मतलब मदर के पास दोनों रिसेसिव एलील आ रहे हैं, mothers are gaining what both recessive alleles. If mother is gaining both recessive alleles, then none of the sons will be affected because ultimately X क्रोमोसोम तो मदर का ही जाएगा सन के पास, फादर का तो जाएगा नहीं। अगर अफेक्टेड फादर सन को इन्फेक्शन दे रहा है, मीनिंग इट इज डेफिनेटली नॉट एक्स लिंक्ड। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अफेक्टेड फादर and if it is normal mother, then also there is no son that has to be affected, कोई सन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशन, ये दो कंडीशन को अगर तुम याद रख लिए डोमिनेंट के लिए एक्स लिंक के हिसाब से, दैट इज अगर ये दो कंडीशन दिख रही है देन इट इज एक्स लिंक डोमिनेंट, अदरवाइज इट हैज टू बी ऑटोसोमल। अगर रिसेसिव आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो एक्स लिंक रिसेसिव कैसे होगा? तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम बुरे वाले रहेंगे, तो सारे सन के पास ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा, यानी ऑल सन हैज टू बी अफेक्टेड। ठीक है, डॉटर्स का क्या, तो डॉटर्स मे और मे नॉट बी अफेक्टेड डिपेंडिंग ऑन की फादर कैसा है। अगर फादर नॉर्मल है, इफ फादर इज नॉर्मल मतलब फादर हैज वन डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम, इफ फादर हैज वन डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम तो वो उसके डॉटर को देगा ही देगा। तो मदर चाहे इन्फेक्टेड हो और उसके गंदे वाले क्रोमोसोम दे रही है, लेकिन फादर उसका डोमिनेंट क्रोमोसोम दे रहा है, जिस वजह से नो डॉटर्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिसेसिव एलील with X chromosome. All right, this is also one of the key. And of course, there is something called as crisscross inheritance that you need to observe. This is also one more trick. Crisscross inheritance क्या होता है? When affected father transfers its disease to his grandson, but then that is via a carrier daughter. If that is via a carrier daughter, if affected father gives it to grandson via a carrier daughter, then in that case also you have X-linked recessive disorder. To classify this to be as X-linked recessive disorder. ये बेसिक की हो गए बेटा, अगर ये की हमको समझ में आ गई तो मैक्सिमम हमारे पेडिग्री सॉल्व हो सकते हैं इससे। ठीक है, मैक्सिमम पेडिग्री इससे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ पेडिग्री एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे दोनों डोमिनेंट या रिसेसिव भी हो सकता है, वो एक्स लिंक या ऑटोसोम भी हो सकता है। ठीक है, वो जैसे जैसे आप ज्यादा सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व दैट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पेडिग्री ओवर हियर। व्हाट डज इट शो? सो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो फर्स्ट रूल हमें अप्लाई करना है कि वो जनरेशन स्किप करना चाहिए। चेक बेटा, फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है लेकिन नेक्स्ट वाले जनरेशन में डिजीज आया, दैट मीन्स इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। अब हमें ये चेक करना है कि वो एक्स लिंक है या ऑटोसोमल। व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बट देन द चाइल्ड इज इन्फेक्टेड। ठीक है, पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बट चाइल्ड इज इन्फेक्टेड। रिसेसिव के लिए हमने क्या ऑप्शन देखा था? रिसेसिव के लिए हमने देखा था कि जो मदर है अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो सारे सन इन्फेक्टेड होने चाहिए। करेक्ट। और अगर फादर इन्फेक्टेड है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम देखें तो मदर may have small x chromosome that is going to this son. Mother may have one dominant x which may go to this son, right?
and that same may go to this one, और फादर इज ऑल्सो नॉर्मल, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये शायद ऐसे हुआ होगा, मदर का एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे चला गया, यहाँ पे अगर हम देखें रिसेसिव की वजह से, तो यू हैव मदर का छोटू एक्स विच इज कौन, फादर का भी छोटू एक्स जाना चाहिए था, बट फादर का छोटू एक्स नहीं गया. नॉर्मल फादर should have normal daughter was our rule. Normal father is not having normal daughter. This is definitely not X-linked. This is autosomal, right? So color blindness, hemophilia is ruled out. It cannot be hemophilia. It cannot sex-linked. Pedigree chart is wrong and none. This is not wrong. It is a correct chart. Inheritance of sex-linked polyketonuria, phenylketonuria is not sex-linked. It is autosomal recessive trait. So one becomes your answer. ठीक है. नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, ये वाला. इस वाले में हमें कैसे क्या ड्रॉ करना है. आई टेक अ लिटिल बिट मोर अबव, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं यहाँ. ओके, हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई इफ इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव. पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव. ठीक है, तो ध्यान से चेक करो बेटा. पेरेंट्स में नहीं है, लेकिन सन में आया, दैट मीन्स दिस हैज टू बी रिसेसिव, राइट. दिस हैज टू बी रिसेसिव, यानी फर्स्ट और सेकंड तो पहले ही रूल आउट हो गया, ये दोनों हमारे रूल आउट हो गए ऑप्शन. ठीक है, अब हमें देखना है कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम. अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो अफेक्टेड मदर शुड डोनेटेड टू हिज सन. मदर टू सन तो जा नहीं रहा है. ठीक है, मदर टू सन तो जा नहीं रहा है. सेकेंडली, अफेक्टेड फादर, affected mother should also give to affected son. Affected mother is not giving to son. Again, दूसरी बारी प्रूफ हो गया कि एक्स लिंक्ड नहीं है. So this has to be autosomal. So this is ruled out and this becomes your answer. Try to understand. Just rules follow karo and you get the answer without. Affected mother should give it to the son, but mother is not affected. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी आ सकता है कि सर वो तो कैरियर भी हो सकती है ना. करेक्ट, शी कैन बी कैरियर ऑल्सो. इसलिए हमने क्रॉस चेक करने के लिए एक और जनरेशन देखा जहां पे यहाँ पर भी अफेक्टेड मदर है, which is not giving it to the son. That means again we are proving that it is not extreme but rather it is autosomal. Hence proof. एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं पेडिग्री का. थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, अगेन इसमें पहले हमें ये देखना होगा कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव. ना चेक इफ आई ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर फैमिली. अगर इस परिवार को देखेंगे तो तीनों जनरेशन में डिजीज है. इस परिवार को अगर हम देखेंगे तो तीनों जनरेशन में डिजीज है. इस परिवार को अगर हम देखेंगे तो सर इसमें डिजीज है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो रिसेसिव ना. नो, इट इज नॉट. डोमिनेंट का हमने एक रूल बताया कि फर्स्ट में इन्फेक्शन, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, स्टिल इट इज डोमिनेंट. अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होता तो इट वुड हैव बीन रिसेसिव बेटा. ऑलराइट, सो इस वजह से यहाँ पे वी विल कंसिडर दैट देयर इज नो skipping of generation, so this is dominant. This will be dominant. तो ये दोनों रूल आउट हो गए. ठीक है, ये दोनों रूल आउट हो गए हमारे लिए. अब हमें ये देखना है कि वो एक्स लिंक्ड है या रिसेसिव. हमने क्या कहा था कि अगर डिजीज डोमिनेंट जीन की वजह से आ रही है, देन नॉर्मल मदर will always have normal son. So check, this son is normal but this son is affected. ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया रूल. दूसरा हमने कहा था दैट इफ मदर इज इन्फेक्टेड, दूसरा हमने कहा था दैट इफ द फादर इज इन्फेक्टेड दैट way, then all daughters should also be infected, which has been done very well. But then here ये वाला तो नहीं हो रहा है for sure, which is normal mother is having infected son. So by default, this particular son which is infected by dominant trait,
ये अगर स्मॉल एक्स हो गया तो इसके पास स्मॉल एक्स आना बनता ही बनता है. इट शुड हैव स्मॉल एक्स ओवर हियर. इट शुड हैव स्मॉल एक्स ओवर हियर. अगर नहीं है, that means it is not X linked, but it is rather autosomal. Hmm. So this is autosomal. All right. नेक्स्ट एक और. ओके, अब मैं हम एक और ट्रिक बताता हूं आपको. अगर सपोज हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव. ये तो हम कर सकते हैं बेटा. देखो इस परिवार में अगर हम देखेंगे तो इसको इन्फेक्शन आया, यहाँ पे इसे इन्फेक्शन नहीं, बट इसको वापस आया, मीनिंग इट हैज टू बी रिसेसिव. ठीक है. अब इसी सेम पेडिग्री में एक और फैमिली अगर कोई करेगा नोटिस, तो ये हो गया सर, इसमें भी डिजीज है, इसमें भी डिजीज है, इसमें भी डिजीज है, तो ये तो डोमिनेंट हो गया ना सर. दिस विल बी डोमिनेंट देन इन दैट केस. दिस हैज टू बी डोमिनेंट. नो. अगर हमें एक डोमिनेंट, एक परिवार डोमिनेंट दिखाई दे रहा है, एक परिवार रिसेसिव दिखाई दे रहा है, तो हम हमेशा रिसेसिव को सिलेक्ट करेंगे और डोमिनेंट को नहीं बेटा. ठीक है. So this particular disease that we are observing right now will be recessive. ठीक है. This disease will be recessive. अब ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो रिसेसिव है. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्स लिंक है या फिर ऑटोसोम. इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई, अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्स लिंक है या ऑटोसोमल, एक और तरीका है. एक तरीका ऑफ कोर्स हमने जस्ट देखा दैट इफ इट इज रिसेसिव तो हम देखेंगे दैट affected mother is giving it to all son, affected mother is giving to all son, affected father giving it to daughters. यहाँ पे if the mother is normal, ठीक है, then okay. ठीक है, यहाँ पे she could be carrier in nature and that's the reason the person is affected. Father is normal. If father is normal, all daughters should be normal, which is again recessive X linked का ही information दे रहा है. ठीक है. अब सपोज हमें ये सारे लॉजिक्स शॉर्टकट्स नहीं समझ रहे सर, हम नहीं कर पा रहे इसमें, तो वेरी सिंपल, आप जीनोटाइप डाल दो सब में. ठीक है. अब जीनोटाइप कैसे डालेंगे? तो जीनोटाइप डालने के लिए हमारे पास सिंपल लॉजिक है. ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ. ठीक है. जीनोटाइप कैसे डालेंगे हम? तो रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दिस मदर शुड बी एक्स एंड एक्स, टू एक्स, राइट. फादर शुड हैव कैपिटल एक्स एंड वाई. फादर शुड हैव कैपिटल एक्स एंड वाई. Your mother should have capital X from father and mother से छोटू x. उसी छोटू x की वजह से this person is infected. पापा का y आ गया. पापा is not infected and पापा has dominant x. ये dominant x दोनों फीमेल के पास गए, जिस वजह से फीमेल्स आर नॉर्मल. ठीक है. एंड मम्मी का भी डोमिनेंट एक्स गया, पापा का वाई गया. अब इसके पास मम्मी का छोटू एक्स भी जा सकता है या मम्मी का डोमिनेंट एक्स भी जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक डोमिनेंट आ गया है यहाँ पे. अगर एक डोमिनेंट आ गया यानी वो नॉर्मल हो ही गई है, तो इट डजंट मैटर कि दूसरा मदर इज गिविंग व्हाट. यहाँ पे देखेंगे तो मम्मा का रिसेसिव एक्स, पापा का कैपिटल एक्स वाई. मम्मा का रिसेसिव, पापा का वाई. यहाँ पे पापा का डोमिनेंट एक्स, नॉर्मल फादर, normal daughters. एंड मम्मा का छोटू एक्स या फिर कैपिटल एक्स, डजंट मैटर अगेन. यहाँ पे मदर इज इन्फेक्टेड तो दोनों छोटू एक्स, ये तो बहू हो गई ना, बाहर वाला परिवार का है, ये बहू हो गई बेटा, इसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. तो ये दोनों छोटू एक्स, तो ऑल सन विल बी इन्फेक्टेड विद फादर्स वाई. मम्मा विल गिव हर एक्स, पापा विल गिव हर एक्स, तो ऑल आर इन्फेक्टेड. आर वी क्लियर? Hence proves that it is recessive X-linked. My answer is C in this case. Alright? ये भी एक तरीका हुआ सॉल्व करने का बेटा, अगर हमें शॉर्टकट नहीं समझ रहा है तो. चलो, बहुत बड़ा पेडिग्री आ गया. वेरी इजी है. चेक. इस परिवार को अगर हम देखें तो इसको इन्फेक्शन आया, इसको इन्फेक्शन आया, इसमें इन्फेक्शन नहीं है, इसमें भी इन्फेक्शन नहीं है. कैसे हो गया भाई? ठीक है. तो फर्स्ट में आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में
फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, दिस इज डोमिनेंट। ठीक है, चलो दूसरा परिवार देखते हैं हम। दूसरा परिवार देखिए, ये हो गया हमारा दूसरा परिवार, कुछ इस प्रकार से। इसमें डिजीज, इसमें डिजीज, इसमें डिजीज, इसमें डिजीज, ऑल ऑफ देम, सो इट इज डोमिनेंट अगेन। एक और परिवार देखेंगे, ये वाला, इसमें डिजीज, इसमें नो डिजीज, इसमें भी नो डिजीज, यानी फर्स्ट इज showing but second is not and third is also not, so dominant। फिर एक और परिवार दिया है अपने को, बहुत बड़ा परिवार, ये हो गया कुछ ऐसा दूसरा परिवार हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें डिजीज, इसमें डिजीज, इसमें डिजीज, इसमें डिजीज, hence proved that this is a dominant disorder। तो ये तो कट हो गए दोनों बेटा, it is dominant disorder। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्स लिंक्ड होगा या ऑटोसोम। तो अफेक्टेड फादर गिविंग इट टू ऑल डॉटर्स, यानी एक्स लिंक्ड। affected mother should give it to, sorry, not affected mother, again affected father should give it to all daughters, affected father giving it to all daughters, affected father giving it to all daughters, hence prove that this X link dominant। are we clear? ये वाले हम खुद से सॉल्व करें बेटा, लेट्स ट्राई। इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, यस इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, सारे जनरेशन में दिखाई दे रहा है, तो नीचे के दो तो हट गए हमारे लिए। अब ये है कि इट इज ऑटोसोमल और इट इज रिसेसिव, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। सो एज वी सेड वी ऑलवेज स्टार्ट अज्यूमिंग दैट इट इज एक्स लिंक्ड। ठीक है, लेट्स सपोज इट इज एक्स लिंक्ड, देन इन दैट केस अफेक्टेड, इट इज डोमिनेंट राइट, अगर ये डोमिनेंट है तो अफेक्टेड फादर शुड गिव इट टू ऑल डॉटर्स, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे सन इज हैविंग इन्फेक्शन, so if the mother is normal, son have to be normal, we say no, we did said na, if mother is normal son have to be normal, son is not normal, that means this is autosomal recessive in nature, sorry autosomal dominant in nature। ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट के साथ साथ नॉर्मल मदर जो है, अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो दोनों बच्चे नॉर्मल होने चाहिए, बिकॉज डिजीज जो है वो कैपिटल एक्स की वजह से हो रहा है, ममा को नहीं दिख रहा है मतलब डोमिनेंट यानी कैपिटल एक्स की वजह से हो रहा है, मम्मा में नहीं दिख रहा है मतलब दिस इज स्मॉल एक्स एंड स्मॉल एक्स, तो वो स्मॉल एक्स बेटे में जाना चाहिए था, दोनों बेटों में, पापा का तो वाई क्रोमोसोम आएगा, तो दोनों बेटे नॉर्मल होने चाहिए थे, लेकिन नॉर्मल नहीं है, यानी इट इज नॉट एक्स लिंक्ड, इट इज रादर ऑटोसोमल। वन मोर एग्जांपल सिमिलर टाइप का, लेट्स चेक if it is dominant or recessive। I hope it is easy to identify now। Check, check, check. This is dominant or recessive? Yes, it is recessive because this is showing, this is not showing, this is again coming up। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, बट फिर से आ गया, that means it is recessive। तो ये तो हमारे कट हो गए, ये दोनों में से एक होगा। अब हमें ये देखना है कि ये X linked होगा या autosomal। This is recessive, यानी छोटू X is causing the disease, छोटू X is causing the disease, then affected mother should give to the son। Here it is the affected mother, should have given to the son, it is not giving to the son, right? Then, uh, if mother is normal, okay, she could be carrier. Father, carrier father, okay, 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 okay. Father is infected, daughter is not. Okay, here. If mother is not infected, mother is not infected, okay, mother could be the carrier and giving to the son. Oh, any other logic is it being applied? No, there is no other logic applied. But then this is definitely applicable over here. This is definitely applicable over here. The mother is small x, then son has to have small x. But son is not having small x. That means this is not X linked, but this is autosomal. So you get
D as your answer. Okay, we take another example over here. We are checking whether it is recessive or dominant. As we can see, it is skipping the generation, so this has to be recessive. ये dominant वाला निकल गया. It cannot be Y-linked because females are also infected, तो ये भी निकल गया. ठीक है. अब बच्चा या तो X-linked होगा या autosomal होगा. तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? We said that this is recessive. If it is recessive, affected mother should give it to all son. Affected mother से son में नहीं गया, यानी छोटू x is not giving it to the son. It is not X-linked, but it is autosomal. ठीक है. लास्ट वाला एक और कर लेते हैं बेटा. This will again be recessive because parents में ही नहीं है. This again becomes recessive. तो ये दोनों हट गए ऊपर के. अब whether it is dominant or X-linked is what we have to see. It is dominant or X-linked is what we have to see. So if mother is normal, this one can be affected. If in this case, father is normal, the rule is what? In recessive, normal father cannot have any daughter affected because पापा के पास कैपिटल X आ जाएगा ना, तो वो कैपिटल X तो दोनों डॉटर्स को दे देगा, तो डॉटर शुड बी नॉर्मल. तो ये वाला लॉजिक नहीं बन रहा है. इट इज नॉट X-linked and it is rather. Are we clear up till here, beta? So that is how you're supposed to solve your pedigree analysis. I hope this has made it very easy for you all to solve pedigree. And जितने ज़्यादा pedigree solve करोगे उतना ज़्यादा आसान होगा. So this Hardy-Weinberg's principle. These were very easy topics, and I hope now you all are not making any mistakes. You all will get full marks in these two concepts. All right. Stay focused on your NEET examination. Keep practicing. If there is any doubt, if there are any concepts that you all are finding it difficult, you all can post down in the comment section. I'll post a video on that. Right? Best of luck for your NEET examination.